Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss denture based materials only for originally we will discuss the denture based polymers, but denture based material I have asked or told you about that we will discuss denture based materials because not only the polymers with which we make the denture bases, we can make denture base with any other materials also which is suitable and which completes or which meets the requirements of a denture base. Now, what is a denture base? So, part of denture which rests on soft tissues and does not include the artificial teeth. ठीक है जी, इसमें समझ आई कुछ इस बात की कि ये वो हिस्सा है जो कि सॉफ्ट टिश्यू जो हमारा होता है, नीचे बोन भी होती है, ये नहीं है कि मतलब वो है, लेकिन उस सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर रेस्ट करता है और इसके ऊपर अभी दांत नहीं लगे होते, इस या जो दांत जिसमें इंक्लूड नहीं होते आर्टिफिशियल टीथ जिनको कहते हैं हम, इस चीज को हम डेंचर बेस कहेंगे। इस बात की समझ आ गई? Yes, sir. Now, prior to 1940, already we have described in the polymers in the chapter of synthetic polymers that vulcanite, which is a highly cross-linked natural rubber, is used as a denture-based polymer. And before that, we have gold. We have used, or the dentist uses gold as a denture-based material. Wood also have been used as a denture-based material. Ivory also have been used as a denture-based material. And cobalt chromium and nickel chromium, but not the nickel chromium, usually the cobalt chromium are also used as a denture-based material. So these are the materials which can be used as a denture base. So why we have we are not using nowadays vulcanite, or from 1940 we have declined the use of or obsoleted the vulcanite because it is difficult to pigment it and it becomes unhygienic due to the uptake of saliva. Now, in current situation, we are using extensively acrylic resin, and acrylic resins are universal material which are used for denture base constructions. Now, another thing is called as cold mold seal. Cold mold seal is the alginate material, and it is used in fabrication of our denture base, as the acrylic denture base is normally fabricated in a two-part gypsum mold. इस टू पार्ट जिप्सम मोल्ड को शायद हमने देखा था, अगर आप लोगों ने डेंटल किट्स ली हुई हैं तो उसके अंदर आपके पास एक मेटल की एक मोल्ड सा होगा। तो अगर आप उसको देखें तो
इसको हम 2 पार्ट्स जिप्सम मोल्ड कहते हैं। पहले भी मैं इसके बारे में कुछ थोड़ी सी बात कर चुका हूं। द मोल्ड which we have to produce by investing wax trial denture। ट्रायल डेंचर हमने पहले बात की थी, वैक्स के हम के वैक्स की पैटर्न वैक्स के थ्रू हम उसकी डेंचर बेस बनाते हैं और फिर उसके ऊपर हम इसको फिर आज कुछ मसला हो रहा है, इसको ढूंढना पड़ेगा हमें। ये 34 आया हुआ नहीं है। सर, ये पार्टिसिपेंट्स पे कोई नहीं है सर। हाँ तो पार्टिसिपेंट में से कोई नहीं तो फिर कहाँ से आ सकता है? सर मैं इसको देख रहा था, ये पार्टिसिपेंट में सर। जरा फिर भी और से देखो, और तो कहीं हो नहीं सकता। हसन अहमद को चेक करें सर, हसन अहमद को चेक करें सर। हाँ, ये हसन अहमद कौन है ये वैसे? ये हसन अहमद की माइक से आ रही है। ये हसन अहमद हमारा क्लास का है कुछ? नो सर। नहीं सर, नो सर, क्लास का नहीं है सर। नहीं है तो बस ठीक है, फिर हम इसको निकाल देते हैं। वो खुद ही चला गया शायद। जी मलयाला का घरेगे का خارقت طبعا مشروطة فالكارت كوا روجيتا كورو بكواسي चला गया सर। हाँ हाँ, मुझे हैरत ये हो रही है कि अब मैं आप लोगों के लिए मैंने इसको आपके ग्रुप्स के अंदर भेज रहा हूँ ये चीजें। सर तो ये हम सर की क्लास का कोई बंद, ये कोई लड़का ग्रुप से बाहर भेज रहा होगा सर। बस वही ना, आप मैं लड़का इसमें क्या कर सकता कोई हूँ? भी हो सकता है, कोई भी सिर्फ हो सकता लड़के है, तो चलो नहीं। जो भी है, लेकिन अब हैरत यही है ना। चलो अच्छी बात है। अच्छा जी, मोल्ड अब हमने बात कर चुके हैं कि हमने क्या करते हैं। वही हमने जब वो बना लिया वैक्स को और उसके ऊपर वैक्स रिम्स हमने डाल दिए, फिर वैक्स रिम के साथ हमने उसके ऊपर दांत भी लगा लिए, आर्टिफिशियल टीथ। सो and then this mold cavity is produced by boiling out of wax। ठीक है जी। तो उसके साथ हमारे पास अब जो मोल्ड मिलेगा, वो मोल्ड कैविटी जो बनेगी, जो हमने सिंगल टूथ के लिए जो वो बनाई थी, तो यहाँ पे हमारे पास जिप्सम मोल्ड बन जाएगा। मोल्ड कैविटी या मोल्ड पूरा ही के पूरा मोल्ड आ जाएगा, मोल्ड ऑफ अ डेंचर। Now this mold, gypsum mold is treated with an alginate mold sealing agent। सीलिंग एजेंट क्या है? इसलिए कि हमारा जो मोनोमर है वो हमारे इसमें निकल ना जाए, जिप्सम की तरफ में चला जाए, जो हम अभी इसके अंदर डालने लगे हैं, ताकि हमारा एक्रेलिक का डेंचर बेस बन सके। Now the cold mold seal, originally it is sodium alginate, and when it is placed on or it reacts with the calcium of gypsum, it is converted to calcium alginate। A thin film of calcium alginate is formed। ठीक है जी, इसको इन्होंने थिन स्किन कहा हुआ है, तो स्किन कह लें या फिल्म कह लें, एक ही साथ है। ओवर द सरफेस ऑफ द मोल्ड एंड प्रिवेंटिंग मोनोमर इन द एक्रिलिक डो फ्रॉम एंटरिंग द जिप्सम। तो जिप्सम में उसकी एंट्री हमारी प्रिवेंट करेगा। अच्छा, तो ये कोल्ड मोल्ड सील होती है, ये इसको आपने ध्यान में रखना है कि ये कहां पर यूज हो रही है। तो ये एज अ सेपरेटिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। वैसलीन भी हमने सेपरेटिंग एजेंट के बारे में बात की थी कि वैसलीन इज आल्सो यूज्ड एज अ सेपरेटिंग एजेंट, लेकिन वैसलीन यहाँ पर नहीं यूज होती, हालांकि काम वो भी ऐसा कर सकती है। इसके अलावा एक और चीज है हमारे पास, हम उसको ये कह सकते हैं कि वैसलीन के अलावा कुछ सिल्वर जो होते हैं फॉइल्स और एल्यूमिनियम फाइल, सॉरी सिल्वर नहीं, एल्यूमिनियम फाइल्स, दे कैन आल्सो बी यूज्ड एज, जी क्या कहेंगे उसको? दे कैन आल्सो बी यूज्ड एज सेपरेटिंग एजेंट्स, सेपरेटिंग एजेंट या सेपरेटिंग मीडियम ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। तो सेपरेटिंग मीडियम जो होगा हमारा वो हमारा क्या होगा जी? सेपरेटिंग मीडियम इसमें ये सिल्वर या एल्यूमिनियम फॉइल। सिल्वर नहीं, सिल्वर मेरे मुंह से वैसे ही निकल के है वो, उसका कलर चूंकि सिल्वर होता है, तो एल्यूमिनियम फाइल जो होगी। ओके सर, ठीक है जी। और कोल्ड मोल्ड सील जो है ये ओरिजिनली क्या चीज है जी?
ये डेंचर बेस्ड मटेरियल हो डेंचर फॉर्म करने बेस के लिए मटेरियल एक्रेलिक नहीं है भाईजान, एल्जीनेट है सर। एल्जीनेट है, और ये एज अ सेपरेटिंग मीडियम है, और ये क्या है, इसमें कन्वर्शन हमारी होती है कैल्शियम सोडियम एल्जीनेट टू कैल्शियम एल्जीनेट, और ये एक स्किन सी बना देती है। नाउ रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ डेंचर बेस्ड मटेरियल। अब ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें आप सब कुछ पढ़ लेंगे अगर आप अच्छे तरीके से देखें तो। हमने आज तक जो कुछ पढ़ा है ना, जितनी प्रॉपर्टीज, जितना मतलब फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मिसलिनियस, सारी प्रॉपर्टीज एक ही मटेरियल में आप पढ़ लेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेंचर मटेरियल, डेंचर बेस्ड मटेरियल, requirements are based on physical, mechanical, chemical, biological and miscellaneous properties. We can consider or we can see all the properties in a single material. Now physical properties, physical properties में सबसे पहली चीज हमारे पास कलर आता है, ठीक है ना जी, पढ़ा हमने सबसे आखिर में था, लेकिन ओरिजिनली अगर आप देखें तो कलर सबसे पहले हमारा आएगा। Now an ideal denture based material should be capable of matching the appearance, अपीयरेंस किस चीज की, ऑफ द नेचुरल ओरल सॉफ्ट टिश्यूज। पिंकिश कलर होना चाहिए, जब हम हंसे या मतलब जिसको लगे वो हंसे जिस वक्त, तो ऐसे ही लगे जिस तरह उसके अपने दांत हैं, अपना ये जो है गम की हमें शक्ल दिखाई दे उसमें, ठीक है जी। और स्पेशली उस पेशेंट की जिसकी लाफ लाइन या जिसकी मतलब शो हो रहे हो गम खास तौर पर, तो वहां पे पिंक लाजमी है। ये नहीं है कि वहां पे हम कोई और ही कलर दे दें, तो वो तो बहुत ही अजीब सी चीज लगेगी। अच्छा जी, तो और इसमें यही चीज है कि वो जब पेशेंट ओपन करता है इसका माउथ, इट शुड बी, इट इज विजिबल और नॉट। अगर डेंचर बेस विजिबल नहीं है तो फिर हम कोई भी उसमें कलर लगा सकते हैं उसको। इवन ट्रांसपेरेंट भी हम यूज करते हैं। ट्रांसपेरेंट वैसे भी अच्छा होता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट जहाँ पे विजिबल एरिया हो वहां पे हम इसलिए नहीं करते कि खुदा ना खास्ता उसमें अमूमन खुराक वगैरह पीछे चली जाती है, तो वो जो है वो फिर बाहर सामने नजर आती है। नाउ द अदर वन इज द टीजी, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। इट इज आल्सो डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स about synthetic polymers that TG has a marked effect on the properties of a material and TG is a physical property. वही बात के अगर हम उसको रखते हैं तो क्या होगा, माउथ का टेम्परेचर 32-37 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रहेगा, लेकिन बाद लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गर्म चाय बल्कि उससे भी ज्यादा वाली पीते हैं। Now some patients also are very much conscious about the hygiene of their denture and they put their dentures in boiling water, ठीक है ना जी, तो और hot water to disinfect these, so it can also adverse the situation because of the TG of the denture based polymers. Now the dimensional stability and specific gravity. Dimensional stability is shape of denture does not change over a period of time, ठीक है ना जी। This should be the they should predict or they should show us the dimensional stability of a denture. So dimensional stability is the distortion, and this can occur due to thermal softening, very hot temperature in which the denture will be soaked or will have to disinfect, and other mechanism like रिलीफ ऑफ इंटरनल स्ट्रेसेस। इंटरनल स्ट्रेसेस भी रिलीफ हो सकती हैं, तो इसमें भी वार्पेज एक लफ्ज है, हम पढ़ चुके हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ वार्पेज, इट शुड बी कंसिडर्ड अबाउट द रिलैक्सेशन और रिलीफ ऑफ द इंटरनल स्ट्रेसेस व्हेन पुटिंग द डेंचर इन अ वेरी मच कोल्ड और वेरी कोल्ड में तो इतना मसला नहीं होगा, बट इन हायर टेम्परेचर्स। नाउ continued polymerization, if our polymerization is not, जो पहले कह चुके हैं hysteresis effect, अगर हमारी polymerization, if our polymerization is not completed at the time when we have given denture to the patient, so there are chances that its polymerization may continue with several factors. And water absorption also contribute। ये फिर 34वां आया, ये देखो कौन है ये, इस 34वें पे ये नजर खदीजा कुरैशी है इसका और क्या हो मरवा जाता है ये क्या करती है। लेकिन मैं आप लोगों की खदीजा 32 की कुरैशी अटेंडेंस लगा चुका हूं। मैंने आपको पहले भी कहा हुआ कि पहले 2 मिनट के अंदर अंदर मैंने अटेंडेंस लगानी होती है। अब जो भी आया गया है उसकी जिम्मेदारी उसकी अपनी है, अटेंडेंस लग चुकी है।
अच्छा जी, यस सर सर। मेरी आया कनेक्शन तो दोबारा सर कनेक्शन प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये बताएं। आप लोगों को कनेक्शन अपने सीधे रखने चाहिए ना सर जी। सर तो सर मैं खैर है, आज स्टार्टिंग से सिर्फ लेट आई हूँ। अच्छा चलो, अल्लाह खैर करे, इसको भी देखूंगा। और इसमें एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि कल से हम क्लास थोड़ी सी आगे ले जाएंगे, क्या ख्याल है, 4 बजे, क्योंकि आप लोग सो जाते हैं सारे। सर Yes, 4 बजे sir. सर सर 4 4 बजे बजे ठीक ठीक है। है। हैं? नो सर 4 बजे तो नहीं। क्यों 4 बजे 4 क्या हो? बजे सर ठीक है 4 सर। ठीक है। सर वो 4 बजे सही है सर, 4 बजे अब ये तो है कि नमाज जल्दी हो जाती है ना, तो 4 बजे अगर हो जाए तो वो जी 3:45 ठीक है। नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं, 4 बजे ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला सर लक्साड़ो देवा मोटरवे सर हाँ, इधर मोटरवे के बंदे थे। ندى अच्छा जी, مروان الزيرة لك جنيه नहीं दा नहीं, लक्ष्य थोड़े नहीं दे। अच्छा चलो इधर आओ। बेस शुड हैव गुड आवाज डायमेंशनल बला स्टेबिलिटी, ये इस पे हो गई हमारी बात। इसके बाद स्पेसिफिक, बेटा लेक्चर के दौरान कम से कम सीरियस रहो थोड़े से। अच्छा जी, मटेरियल शुड आइडियली हैव अ लो वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड सर तो कल 4 बजे क्लास शुरू होगी सर। 4 बजे and denture ठीक है should सर। be as light as possible. Heavy denture, if then it will क्या होगा, drop with the effect of only gravity. तो gravity की वजह से ही वो गिर जाया करेगा, बाकी उसको किसी dislodging force की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है जी। सर जी सर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला पॉइंट प्लीज रिपीट कर दे, इसकी समझ नहीं आई। स्पेसिफिक ग्रेविटी यही है ना कि डेंचर जो है उसको लाइट होना चाहिए। हैवी अगर वो बनेगा डेंचर, जैसे हम कहते थे पुराने जमाने में डेंचर जो हम बनाते थे गोल्ड से बनाते थे, तो वो अच्छा खासा हमारे पास जो होता था हैवी होता था, तो वो डेंचर खुद ब खुद नीचे गिर जाता था, जो और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से। तो बाकी डिस्प्लेसिंग फोर्सेस तो बाद ओके में काम करती थी, स्पेशली अपर जो डेंचर था। तो स्पेसिफिक ठीक है, थैंक ग्रेविटी यू सर। इसलिए मटेरियल विच should be used for making denture base must have a specific gravity which is the low specific gravity या high specific gravity। लो स्पेसिफिक लो ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी Low. बिकॉज़ चलो जी ठीक है जी। now thermal conductivity and radio opacity। thermal conductivity आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। thermal conductivity is if a material which is used is of high thermal conductivity, then what should be the consequence? If it is of a high thermal conductivity value, then इट माइट patient डैमेज द नहीं, patient can readily recognize the hot and cold। अगर उसकी लो होगी थर्मल कंडक्टिविटी तो फिर तो वो नहीं कर सकेगा, वो तो फिर हमारा इंसुलेटर बन जाएगा। ठीक है, सो क्या होगा जी, हाई वैल्यू इज necessary, but we are using the acrylic which is not having the high value of thermal conductivity, it has a low thermal conductivity। ठीक है जी। if the base is thermal insulator, it is possible that the patient may take a drink which he would normally detect as being too hot to bear and undergo a painful experience। ठीक है ना जी, जो ही वो पिएगा तो उसको वैसे तो हमारे तो वैसे हम गर्म चीज लाते हैं, हमारे दांत ही उसको देख के जो ओरिजिनल नेचुरल होते हैं तो पता उसको फौरन सेंस करते हैं कि ये बहुत गर्म है, तो हम उसको परे कर लेते हैं। अदरवाइज वो क्या करेगा, वो फौरी तौर पे जाके जुबान और सारा उसका गला वगैरह और गलत और सारा नीचे जो है यहाँ तक जहां जहां तक वो जाएगा तो वो उसको जला देगा। ठीक है जी। अब फिर ये 34वां आ गया, मुझे नहीं समझ आ रही आप लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, डेंचर बेस शुड आइडियली बी रेडियो ओपेक। रेडियो ओपेक क्या चीज होती है जी, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं जी। सर वो रेडिएशन जिससे ना फ्रीक्वेंसी जिससे ना जा सके। हाँ, रेडियो ओपेक जो होती है वो जो हमें उसमें नजर आ सके, किसमें जी, रेडियो ओपेक विजिबल लाइट में सर। नहीं बेटा, रेडियो ओपेक वो होती है जिसको हम हाँ। एक्सरे में डिटेक्ट कर सकें। रेडियो ल्यूसेंट और रेडियो ओपेक की बात हुई थी हमारी जी, समझ आ गई। तो ये रेडियो ओपेसिटी है, क्योंकि ओरिजिनली होता ये है कि बाज औकात कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ये वायलेंट एक्सीडेंट लिखा हुआ है। वायलेंट एक्सीडेंट कहाँ पे होता है, वायलेंट एक्सीडेंट ये
कोई मुक्का ही खा लेता है हेड या नेक की रीजन में सब हो जाए। या जी Sir, opaque to X-rays. हाँ हाँ एक्सरेज वो तो हो गया। तो कोई मुक्का खा लेता है जो हमारा वायलेंट एक्सीडेंट है, या अमूमन होता ही है कि गाड़ी का एक्सीडेंट होता है खुदा ना खास्ता, तो वो जाके जब टकराता है विंड स्क्रीन से या साइड से किसी जगह पे, तो डेंचर जो है उसके फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो उसके अंदर चले जाते हैं। तो अगर वो रेडियो ओपेक होगा तो फिर क्या होगा कि हम उसको डिटेक्ट कर सकेंगे एक्सरे करके। डिटेक्ट कर लेंगे। हाँ, और अगर ये नहीं होगा तो नहीं कर सकेंगे। ये दोनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए लेकिन ये है नहीं, ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। हमारा जो मटेरियल है वो रेडियो ओपेक भी नहीं है, ये डेंचर बेस्ड पॉलीमर जो है, और थर्मल कंडक्टिविटी जो है इसकी वैल्यू ये भी लो है। ये आ गया जी डेंचर। अगर आप इसको देखें तो ये एक्रिलिक डेंचर है और इसमें ये तीत लगे हुए हैं, इस तरह का डेंचर होता है, और ये पिंक कलर हम इसको देते हैं। और ये उसके पाउडर और लिक्विड की वो है, मतलब ये पाउडर होता है ये वाला इस तरह का, और लिक्विड इस तरह की बॉटल में होता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पर आप आते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है ना उसके अंदर डेंचर मटेरियल शुड बी, डेंचर बेस्ड मटेरियल शुड बी रिजिड। रिजिड से मुराद ये है कि इट कैन एब्जॉर्ब द एनर्जी, ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन आप लोगों को आनी चाहिए, बता चुके हम। एंड अ हाई वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज एडवांटेजियस। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जितना इसका ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। एंड अ हाई वैल्यू ऑफ इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के हम उसको जब छोड़ दें तो बगैर परमानेंट डिफॉर्मेशन के वो वापस अपनी जगह पे आ जाए ड्यूरिंग बाइटिंग और मैस्टिकेशन। तो ये दोनों चीजें मिलके बहुत ही एडवांटेज प्रोवाइड करती हैं हमारे उसको, स्पेशली व्हेन वी आर फैब्रिकेटिंग denture base at thin sections. Now fractures usually are denture base material fractures due to the insufficient flexural strength to resist a fracture. So denture base material should have sufficient flexural strength to resist fractures. Usually our upper denture breaks through the midline of denture due to the flexing. तो अपर डेंचर हमारा जो है चूंकि उसके साइडों पे दांत होते हैं, हम आगे एक पिक्चर है शायद इसको दिखा सकें, ये वाली, ये देखें, ये दांत हैं, ये दांत हैं, तो ये मिड लाइन में से अमूमन, और यहाँ पे एक नॉच भी होती है आगे वाले, अगर आप किसी का फुल डेंचर देखें तो एक नॉच सी बनी होती है जो उसको हम लेबियल फ्रीनम कहते हैं, जो है उसके बिल्कुल सामने वाले पोर्शन में। तो वहां पे स्ट्रेसेस पड़ती हैं इस फ्लेक्शन की वजह से, तो मिड लाइन से ये फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है जी। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के ऊपर हम सेकंड चैप्टर में अच्छी खासी बात कर चुके हैं। तो ये उसकी इम्प्लीकेबिलिटी है, एप्लीकेबिलिटी है कि जी हमने वो इतनी हमने पढ़ी जी, वो क्या होती हैं ये प्रॉपर्टीज, तो उनका फायदा क्या है, ये फायदा आता जा रहा है। आप इसमें प्रॉपर्टीज भी आप देखें वन बाय वन आपके पास आती जाएंगी। नाउ फटीग मैकेनिज्म जो है वो भी इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है जी। तो स्मॉल क्रैक होगा हमारे पास जो स्मॉल फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस के ऊपर आएगा, तो स्मॉल के साथ काफी टाइम जब ले लेगा तो फिर उसके बाद ये प्रोपगेट करेगा, क्रैक प्रोपगेशन वाला फिनोमिना भी इसमें आ गया, ठीक है जी। स्ट्रेस इंटेंसिफिकेशन फैक्टर जो था वो ग्रिफ्थ थ्योरी, वो सारा कुछ इसमें आ ही जा रहा है अगर आप इसको देखते जाएं। उसके बाद क्या होगा जी, फटीग लाइफ और फटीग लिमिट भी इसके अंदर आ जाएगी, क्योंकि इस डेंचर की हमने फटीग लाइफ और फटीग लिमिट को भी देखना है। तो डेंचर शुड हैव एन एडिकेट फटीग लाइफ एंड हाई वैल्यू ऑफ फटीग लिमिट, ठीक है ना जी। तो फटीग लाइफ और फटीग लिमिट के ऊपर हम अच्छी खासी बातें कर चुके हैं सेकंड चैप्टर में। नाउ अदर फैक्टर्स आर danger of fractures and how it is in danger. The denture is in danger when you have removed this, or the patient has removed for overnight soaking, cleaning, and removing from the mouth for taking rest to his mucosa, and accidentally dropped into the floor or any hard surface. So now the impact strength again comes in
as a property. So a high impact strength of the material should be there for making, or should be considered for making a denture base. Impact fracture may occur in situ. Again, in case of an accident, पेशेंट अमूमन हम आके बात करते हैं कि जी हम तो चावल खा रहे थे जी, हमने तो या कुछ खाया भी नहीं और एकदम से बस खाली मुंह बंद किया, दांत ये जो है डेंचर टूट गया। लेकिन हुआ क्या होता है, वही वो क्रैक प्रोपगेशन और क्रैक इनिशिएशन शुरू हो चुकी होती है और फिर बाद में वो खुद बहुत ही वो टूट जाता है, उसको भी पता नहीं चलता और फिर जब होता है तो वो टूट चुका होता है। ये फिनोमेना हम हर जगह पे देखेंगे, हम हमारे डेंचर के अलावा रेस्टोरेशन में भी देखेंगे। So the fragments of denture may then become embedded into soft tissue or may be inhaled if they are of low impact strength. Now wear and abrasion, abrasion resistance फिर एक आ गया, wear फिर प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, और abrasive wear और surface hardness ये चीजें भी हम पढ़ चुके हैं। ये सारी की सारी हमारे जो डेंचर बेस मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी में आती हैं। और वियर एब्रेजन क्या है आप लोगों को अच्छी तरह मालूम होना चाहिए जी, वियर क्या है और एब्रेजन क्या है जी। सोए हुए हैं सारे? आज तो लगता है सारे सोए हुए हैं या आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर। तो फिर अभी तक मुझे जवाब ही किसी ने नहीं दिया। अच्छा जी, तो वियर और एब्रेजन का तो समझ आ गई ना कि वियर ऑफ भी हो सकता है किसी भी, मतलब आप उसको जब साफ करते हैं या कोई ऐसी चीज खाते हैं जो फूड स्टफ जो होता है हमारा, उसको हम जब यूज करते हैं तो ये हमारा, और कौन सा फूड स्टफ जो है हमें वियर कर सकता है ज्यादातर हमारे दांतों को? एप्पल। आप अगर एप्पल जो खाते हैं ना ज्यादा, उनके दांत ज्यादा रगड़े जा सकते हैं, ये भी ध्यान में रखें। ये वो वाला टियर वाला है ना? हाँ, वियर टियर नहीं है, टियर और चीज है, ये वियर है सिर्फ। और एब्रेजन में आया था सर ये एप्पल में इसका कैसा कौन सा कमाल है? बस ये एब्रेसिव है ना, उसका जो छिलका है वो एब्रेसिव है, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है कुछ ऐसी है कि वो हार्ड है, हार्ड एनफ है, तो इस वजह से वो इस जो है हमारे दांतों को वियर ऑफ कर जाता है। यस सर। ये सर इस वजह से जो ये डेंटिस्ट्री के कमर्शियल्स होते हैं या टूथपेस्ट वगैरह के, उसमें एप्पल दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन उनको पता नहीं होता है वो क्यों दिखा रहे हैं, वो शुरू में किसी ने दिखा दिया होगा और उसी के ऊपर चल रहे हैं। आप अगर पूछें कि क्यों दिखाया जाता है तो कोई आपको बता नहीं सकेगा, वो ये कहेंगे जी कि एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। हालांकि डॉक्टर इज हैंडसम कीप एप्पल अवे। नहीं, और इसमें एक और चीज ये है कि ये एप्पल जो है अ डे जो है कीप योर टीथ अवे अगर आप रूटीन में खाएं तो। अच्छा जी, केमिकल प्रॉपर्टीज पर अब हम आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमेशा ये चीज में रखें कि द मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर एनी डेंटिस्ट्री prosthesis or for any restorative or any other aim, it should be chemically inert, insoluble in oral fluids, and it cannot or should not absorb water or saliva. If these three things happens, then what are the consequences? They alter the mechanical properties of the material and causes the restoration, not only denture, each and every restoration. अनहाइजीनिक तो सिर्फ डेंचर में आएगा, दूसरों में भी अनहाइजीनिक हो सकता है, लेकिन दे शुड रेंडर द मटेरियल अनहाइजीनिक और unsuitable for the, if these three properties are present in a material, if it is not chemically inert and not soluble, soluble in oral fluids and absorb water or saliva, it is not suitable for oral rehabilitation or restoration. Now the biological properties में फिर ध्यान में रखें कि
अनमिक्स्ड और अनक्योर स्टेज में जितने भी मटेरियल होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं अमूमन हार्मफुल होते हैं। ठीक है जी। तो कोशिश ये होनी चाहिए, ये फिर प्रॉपर्टी ऐसी है ये हम उसको वो नहीं कर सकते कि हमारा जो मटेरियल है वो अनहार्मफुल नहीं है, इट इज अ हार्मफुल मटेरियल। ठीक है जी। तो इसको हाथ नहीं लगाना, मैंने पहले भी कहा था कि नेवर एवर टच एनी मटेरियल विदाउट प्रोटेक्टिंग योर हैंड्स थ्रू जी gloves. थैंक यू, Surgical बड़ी gloves. मेहरबानी जी। हाँ जी। नाउ अब ये तो अनमिक्स्ड और अनक्योर स्टेट में था ना। अब सेट डेंचर मटेरियल जो है ना, ये तो किसी सूरत में भी इसके अंदर किसी किस्म की इरिटेशन या टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। तो बेस जो है उसको इम्परमिएबल होना चाहिए, किसी किस्म का उसके अंदर ओरल फ्लूइड वगैरह नहीं जाना चाहिए। अगर ये चला जाएगा ओरल फ्लूइड वगैरह, तो सिर्फ ओरल फ्लूइड नहीं जाएगा, उसके साथ क्या होगा, बैक्टीरिया और क्या फंजाई या फंगस भी चला जाएगा। ठीक है जी। नाउ द मिससेलेनियस प्रॉपर्टीज, मटेरियल शुड बी रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव। सस्ता होगा तो अच्छा है ना। अब गोल्ड के आप डेंचर किसी को लगाना चाहें तो कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का तो गोल्ड लग जाएगा उसके ऊपर। ठीक है सर जी। सोना भी महंगा हो रहा है। हाँ ना, तो इसके लिए मटेरियल शुड बी रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव तो नहीं होता, लेकिन एक अच्छा लफ्ज है ना। अब चीपर अगर हम कहेंगे, चीप कहें तो चीप के दो मायने आती हैं, तो इसलिए इनएक्सपेंसिव या लेस एक्सपेंसिव अगर हो तो वो ज्यादा बेहतर है। फिर ये शेल्फ लाइफ भी आ गई प्रॉपर्टीज के अंदर, देख लें। लॉन्ग शेल्फ लाइफ इज द मेन प्रॉपर्टी फॉर अ मटेरियल and it is a miscellaneous property, and if long life is there then you can purchase it in bulk and can store without deteriorating. Now its manipulation should be easy. ठीक है जी। और एक्सपेंसिव प्रोसेसिंग जो इक्विपमेंट है वो भी आपको नहीं चाहिए होने चाहिए इस चीज के लिए, ये भी ध्यान में रखें। जो आप इसके अंदर यूज करेंगे, हमने जो 2 पार्ट मोल्ड आपको बताया वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 1000-1500 रुपए 2000 रुपए की सारी चीज है। वरना दूसरे जो हैं अभी हम मटेरियल्स पढ़ेंगे उसके अंदर बहुत एक्सपेंसिव किस्म के प्रोसेसिंग इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इफ फ्रैक्चर डू अकर दे शुड बी इजीली रिपेयर्ड। ये भी मिससेलेनियस प्रॉपर्टी में है कि किसी भी मटेरियल में फ्रैक्चर या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम उसको रिपेयर कर सकें इजीली। नाउ acrylic denture based materials, apart from other materials we are focusing on acrylic denture based material. Acrylic resin most wisely used for denture constructions. Now it is classified into 5 types. 5 types इसकी होंगी, और उसमें से जो ज्यादातर यूज हो रही हैं वो टाइप 1 और टाइप 2 है। एंड अ टिपिकल पाउडर लिक्विड मटेरियल कंटेन्स, हाँ जी ये हम बात कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि कौन सा हो सकता है टिपिकल मटेरियल। सर जिप्सम नहीं, मिथाइल मेथैक्रिलेट। ठीक है जी। तो पॉलीमर जो यस सर, होगा, स्टायरीन। नहीं पॉलीमिथाइल मेथैक्रिलेट। आपको क्या होगा, ये पॉलीमर होगा और मोनोमर हमारा होगा मिथाइल मेथैक्रिलेट। तो दिस इज द कंपोजिशन। In powder polymer, it is polymethyl methacrylate beads, and initiator peroxide, benzyl peroxide, already we have known or we have discussed it. Approximately 0.5% it is present. And pigments, salt of cadmium or iron or organic dyes are added. And in liquid, obviously the monomer is methyl methacrylate. क्रॉस लिंकिंग एजेंट हमने बात की थी, इथाइलिन ग्लाइकोल डाई मेथैक्रिलेट, इट इज अप्रोक्सीमेटली 10%. इनहिबिटर इज हाइड्रोकिनोन इन ट्रेसेस एंड एक्टिवेटर इज एन डाइमिथाइल पी टालविडीन। और ये जो है ये सेल्फ क्योरिंग की वो है। जब हमारा हीट
क्योर होगा तो उसमें हमारा एक्टिवेटर नहीं होगा, एन एन डाई मिथाइल पीटाल्विडीन नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमारा जो क्योरिंग एजेंट होगा या जिसको हम एक्टिवेटर कहेंगे वो क्या होगी हमारी? सर किस तरह सर क्वेश्चन समझ में नहीं है। ये जो कंपोजिशन मैंने बताई है जिसमें एक्टिवेटर है, तो ये जो है ये सेल्फ क्योर या केमिकल क्योर जो है हमारा मटेरियल होगा उसकी होगी, क्योंकि इसके अंदर हमने एक्टिवेटर डाला हुआ है। तो जो हीट क्योर एक्टिवेटर होगा उसके अंदर एक्टिवेटर क्या होगा, या हीट क्योर उसमें नहीं होगा सर। एक्टिवेशन। हाँ, उसमें ये एक्टिवेटर नहीं होगा, उसमें हीट होगी। जब हम हीट Yes, देंगे sir. तो एक्टिवेशन होगी, वरना नहीं होगी। नाउ दीज आर 5 types. So type 1 is of type 1 has 2 classes, class 1 and class 2. Class 1 is heat processing polymer, powder and liquid, जो कि हम रूटीन में यूज करते हैं। ये हीट प्रोसेसिंग है, ये ज़हन में रखिएगा। टाइप 2 में केक्स होंगे, प्लास्टिक केक में, जो कि हीट प्रोसेस्ड होंगे। अब टाइप सर 2 वो तो जो, टाइप 1 में ही आए जाएंगे। सॉरी हाँ, टाइप 1 में क्लास टाइप 2। 1 की क्लास 2, सॉरी। यस सर। तो टाइप 2 जो है उसकी फिर आगे 2 क्लासेस हैं, लेकिन आपकी बुक्स में दोनों क्लासेस को क्लास 1 और क्लास 1 ही लिखा हुआ है। ये क्लास 1 नहीं है, क्लास 1 और क्लास 2 है, क्योंकि अगर ये भी क्लास 1 हो टाइप 2 और ये भी क्लास 1 हो तो फिर तो उनको मकसद ही नहीं रह गया। तो ये भी क्लास एक ही 2 चीज है। होगी फिर। तो टाइप 2 क्लास 1 जो है ये ऑटो पॉलीमराइज पॉलीमर पाउडर एंड लिक्विड होगा, और टाइप 2 में क्लास 2 अगर होगी तो इसमें पाउडर और लिक्विड तो होगा, लेकिन ये पोर टाइप रेजन होगा। उस दूसरे को हम पोर नहीं कर सकेंगे, इसको हम पोर करेंगे। ये हम आगे जाके थोड़ा सा और भी इसके ऊपर बात करेंगे, मुझे याद करा दीजिएगा, मैं आपको पोर टाइप के बारे में थोड़ा सा और डिटेल बता दूंगा। टाइप 3 इज थर्मोप्लास्टिक ब्लैंक और पाउडर। ब्लैंक का क्या मतलब होता है? ब्लैंक कोई भी चीज, शीट हो गई, कुछ और चीज हो गई इस तरह से, उसको हम ब्लैंक कहते हैं। टाइप 4 इज